My boyfriend is a Raja Beta. Hi Junaid, my name is ABC and I hope you're doing well. I'm 25-year-old from Delhi, currently living in London, UK. I work as a financial analyst in a consultancy firm. I don't have a lot of male friends and I would like to hear your opinion on a recent cobweb I've got myself stuck into. I'm in a live-in relationship with my boyfriend of 2 years. We met through mutual friends and connected since we both are from Delhi. Our parents knew about us living together and they were cool with it. Last year, my mother visited and she liked my boyfriend. My mother पाकिस्तानी सोच रही होंगे ये कौन सी दुनिया चल रही है खैर यहाँ पे बड़े सीन है लोग बताते नहीं है anyway my mother treated him like her own son. She cooked food and even did laundry for him because that's her way of showing love for her kids. This year, my boyfriend's mother visited us for a quick holiday. Just a side note, her mother is a single parent. She was hesitant and scared of traveling alone, so she came with her brother and his wife. उनके मामा जी और मामी जी के साथ आए ओके द डील was that my boyfriend will sponsor his mamu's stay and travel and mamu in return will make sure his mother travels back and forth safely. अच्छा यार बड़ी डील लगाई है. They stayed in our two-bedroom apartment. Oh, that's a lot. They stayed in a two-bedroom apartment just like my mother, but they came for a month instead of 15 days. यानी इनकी मदर जो है 15 दिन के लिए आई जिन्होंने ईमेल की है और बॉयफ्रेंड के मम्मी और मम्मी की सेफ्टी के लिए मामू और मामी 3 लोग आए और वो 2 बेड में 15 दिन की जगह 30 दिन रहे. Now coming to the problem. Finally, she asked me to give up my room within a day of arriving to his मामू एंड मामी. अच्छा आते ही इन्हीं को घर से निकाल दिया मतलब कमरे से कि मामू मामी रहेंगे and asked me to sleep on the living room sofa instead. Her mother from day one started treating me like Kam Wali Bai and in a room full of people would ask me to get up and make chai or fetch a glass of water while she would massage her son's feet. Anytime she would see her son work, she would make him stop, scold me, and then ask me to do the work. One time I was working from home because of my backache, and during a work call, she barged into my room without knocking and asked me to wash the dishes. She did not like the fact that we meal prepped and that her son was eating stale food. Oh God. She expected me to make fresh food twice a day for 5 people. The worst part is my boyfriend seems cool with all of this behavior, and when I addressed this issue, he said, Mom will leave in another week. I love my boyfriend, but I cannot live with a mother in law so dominating, and since she's a single parent, there's a strong possibility that she would plan to live with us if we eventually end up together. My boyfriend is clearly in denial about these problems and dusting everything under the carpet. I'm seeing a very different side of him, which I didn't in the past 2 years. I do not see my partner anymore in my partner. I see a Raja Beta in him. I don't want to end a 2-year relationship, but I just don't know who he is anymore. What should I do? Regards. So जैसे कि आपने सुनी ये एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है लंदन में रहती हैं दिल्ली से ताल्लुक़ है दिल्ली के ही एक साहब इनको मिले और उनके बॉयफ्रेंड है 2 साल से साथ रहते हैं जब इनकी मम्मी आई अच्छे से 15 दिन गुजरे लेकिन जब बॉयफ्रेंड की मम्मी आई साथ में आधी बारात लेके देखिए मुझे एक तो ये चीज़ समझ नहीं आती एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज़ ये लोग ज़रा आप लोग भी मुझे समझाएं कि वही 24 घंटे होते हैं मगर इंडिया पाकिस्तान में इतना कुछ करने को होता है लेकिन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टाइम नहीं होता मतलब यहाँ पे 2 मील्स बन जाते हैं बट खैर देन द मदर्स आर नॉट वर्किंग मगर ये कि देयर इज सो मच टू डू मगर वहाँ पे ज़िंदगी बड़ी तेज़ चलती है आई डोंट नो व्हाई इसको ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई चूंकि हम सबर्ब्स में रहते हैं या शहर से बाहर रहते हैं एंड वी ड्राइव एन आवर एंड हाफ इट्स लाइक अजमान से आप रोज़ दुबई जा रहे हो नौकरी करने तो आपका तो आधा दिन तो सड़क पे ही निकल गया तो फिर उसके बाद कुछ करने को बचता नहीं है बट देन नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी चीज़ें रिमोट हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ों में आपकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी यार वक्त ऐसे गुजरता है वहाँ पता नहीं क्या होता है एनीवे सो आपने अपने बॉयफ्रेंड का असल रूप देखा इसीलिए अब फिर मैं कुछ बोलूँगा फिर फतवेबाजी होगी बंदा ना ये देखिए ये चीज़ें पहले सामने आ जाती हैं लेकिन अब आप एज अ मुस्लिम एंड एज अ पाकिस्तानी अब ये चीज़ें एडवाइस कर नहीं सकते लोगों को मगर इसमें ये कि आपके सामने चीज़ आ गई क्योंकि इस पर फिर ज़ाहिर है एक तो लीगल बॉन्डिंग कोई नहीं है लीगल प्रोटेक्शन कोई नहीं है बहुत सारे रीजंस हैं रिलीजियस रीजंस तो हैं ही ना साथ रहने के बट मोस्ट जो एक और बहुत ज़रूरी है वो लीगल बाइंडिंग कोई नहीं है ना आपकी कल को आपको बोले सामान उठाओ निकलो तो फिर इस तरह यूजेज
के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। एनीवे खैर वो अब एक लंबी डिबेट है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मगर ये कि आपको कम से कम एक ये मिल गया व्हाट यूर इन फॉर। अब एक चीज़ जो आप, एक तो होता है ना कि यूर डेटिंग समवन, और फिर आपकी जब शादी हुई उनसे, एंड देन फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि अच्छा यार ओके दिस इज़ हाउ ही ऑपरेट्स। लाइक आई नो समवन, उनको शादी के बाद पता चला कि जी उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो ड्रिंक भी बड़ी करते थे। आई मीन आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव कि ये चीज़ छुपी कैसे। बट खैर टू ईच देयर ओन। तो इस पे तो समझ आता है कि चलो इफ़ यू आर डेटिंग ट्रेडिशनल वे में कि लाइक आप यू मीट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, तो आप इतने, और आप बड़े कम पीरियड के लिए मिलते हो, सिनेमा में चले गए या पार्क में वॉक कर ली या आपने खाना वाना खा लिया, तो उसमें तो इतनी चीज़ें नहीं। बट व्हेन यू आर लिविंग विद समवन, आपको बहुत कुछ नज़र आ जाता है इंसान के साथ। अच्छा यार दिस इज़ हाउ ही, दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ जब इंटरनेट स्लो होता है, दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ जब ये सुबह उठता है, ग्रॉगी होता है, गुस्से में होता है, या पेट में कुछ गया नहीं होता। लाइक आई फाउंड आउट अबाउट माई वाइफ कि यार अगर इसको ना सुबह यूं करके चाय नहीं फेंकी ना तो हंगामा हो जाएगा। सो दिस आई फाउंड आउट मच लेटर ड्यूरिंग आवर ट्रैवल्स विद माई वाइफ कि उनको अगर सुबह चाय ना मिले तो हंगामा खड़ा हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि यार आई मेक श्योर कि चाय जाती हुई मुझे दिख जाए, देन आई नो हाउ टू ऑपरेट। सो या ये चीज़ें साथ रह के आपको छोटी मोटी निटी ग्रिटीज नज़र आती हैं। तो आप 2 साल से अगर लिव इन में हैं एंड देन यू डिडंट सी दैट पार्ट, अगेन इंसान गर्लफ्रेंड के सामने अलग होता है, मम्मी पापा के सामने अलग होता है, बहन भाइयों के सामने अलग होता है। तो ये यहाँ तक तो हम समझ सकते हैं। एक तो ये चीज़ होती है जो सिंगल मदर्स होती हैं, वो एक बहुत बड़ा वॉइड जो है, देखें माइनस द ऑब्वियसली इमोशनल लव, देखिए एक तो माँ का लव है ना और एक लव है, वो वाला पार्ट हटा के सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो गई, ये सारी चीज़ें होंगी, तो एक माँ ना फिर वो बेटे को अपना जो वॉइड उसका नहीं हो, जो उसका वॉइड होता है आफ्टर द लॉस ऑफ हस्बैंड, तो वो बेटे में देखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटे को शौहर बनाती है, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा, बट वो एक मेल फिगर का होना, एक प्रोटेक्शन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फिर वो बेटे में ट्रांसफ़र हो जाता है। और फिर ये भी पता होता है कि भाई हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका यही कहना है कि माँ बिठा के समझाती है और बीवी लिटा के समझाती है, तो जीतती बीवी है हमेशा। सो माओ को ये होता है कि यार मैं हर तरह से इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती हूँ, बट लाइक जो टूल बीवी के पास है वो, मतलब जो टूल से मुराद ये कि, सॉरी अगर ये बात थोड़ी डिस्टर्बिंग लग रही है, पर इट्स अ फैक्ट कि जो कंट्रोल मतलब एक टैक्टिक है जो बीवी के पास है, वो ज़ाहिर है माँ तो नहीं ऑफर कर सकती, ठीक है। तो फिर वो थोड़ा सा विकेट से निकल के खेलना और वो शुरू से ही दबाने की कोशिश करना। आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स अराउंड मी जहाँ पे द मेन हैव कम ऑफ एज, लेकिन और ये हकीकत है बोथ इन केसेस ऑफ सिंगल गर्ल्स एंड बोथ इन केसेस ऑफ सिंगल गाइज। अगर तो सिंगल गर्ल कमा रही और अच्छा कमा रही है तो पेरेंट्स फिर कभी कभी नहीं भी चाहते कि शादी हो जाए, क्योंकि शादी होगी तो फिर इनकम कहीं और चली जाएगी, वो अपना रिटायरमेंट प्लान देख रहे होते हैं ऐसे पेरेंट्स, बिल्कुल होते हैं। सिमिलरली मदर्स जो अपने बेटों को भी इस तरह कंट्रोल करने के लिए, यार अगर बीवी आ गई तो फिर ये तो फिसल के उधर निकल जाएगा और सलाम करके दफ्तर से आएगा, सलाम करके कमरे में घुस जाएगा, तो मैं ये होने नहीं दूंगी। सो दे बिकम वेरी ओनरशिप ओरिएंटेड रादर देन इमोशनली इन्वॉल्व। तो खैर ये चीज़ें आपने देखी। अब बेटे जो हैं, अब दिल्ली एंड लाहौर एंड कराची आर नॉट सो डिफरेंट, तो ये राजा बेटा फिनोमिना तो बहुत प्रेवलेंट है और हमें ये चीज़ें सिखाई भी नहीं जाती, हर चीज़ प्लेट में रख के दी जाती है। मैं खुद इस चीज़ का एग्जांपल हूँ। अभी भी मैं उठा तो मेरी शर्ट भी इस्त्री हुई हुई थी और खाना भी लगा हुआ था, चाय भी रेडी थी, उसके बाद टी केक भी रेडी था। मुझे सिर्फ कपड़े और जूते पहनने होते हैं खुद से और नहाना खुद से होता है, बाकी हर चीज़ खुद ही हुई होती है। अब ज़ाहिर है एक स्पॉइल्ड लाइफ, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट कभी कोशिश भी की ना तो वो मम्मी का यही होता था कि नहीं 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 मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी। एनीवे वो उसको फिर वो लेती है कि यार कहीं मुझ में कोई फेलियर तो नहीं है, ये खुद से क्यों कर रहा है, कहीं मेरे खाने में का टेस्ट इसको बुरा लगने लगा है, या मैं कब शर्ट इस्त्री सही नहीं, पता नहीं एक ये आ जाती है उनके। तो लाइक नहीं 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 जितने भी बीमार हो, नहीं 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 मैं करूँगी मैं करूँगी। एनीवे अब देखिए जनरेशनल गैप तो है। अब 2 मील्स अ डे फॉर 5 मम्मी जी तो कर सकती थी बिकॉज मम्मी जी वॉज वर्किंग हाउस वाइफ, ठीक है। मगर ये आज की वर्किंग प्रोफेशनल रोजाना 3 कढ़ाइयाँ नहीं चढ़ा सकती साथ में, ठीक है। हल्का फुल्का ठीक है, वीकेंड पे आप एक ग्रैंड किस्म का आपने बिरयानी कर ली, पुलाव बना लिया, डिटेल्ड डिश बना ली, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते फिरते फिर पास्ता ये वो इस तरह की चीज़ें ही चलती हैं, बिकॉज यू हैव
यू हैव टू मेनी शूज़ टू फिल, और बहुत सारे रोल्स करने हैं, आपने कंसल्टेंसी भी करनी है, आपने ये भी करना है, वो भी करना है। एंड ऑफ कोर्स लाइफ इन लंदन इज़ नॉट ईजी, यू कैन नॉट ऑर्डर इन एवरी डे। क्लीनिंग भी बड़ी महंगी पड़ती है, आई नो, बिकॉज हमें भी कभी कभी करवानी पड़ जाती है व्हेन द मदर इज़ ओवरवेल्म्ड। तो थोड़ा सा रुक रुक के चलना पड़ता है। अभी एक जनरेशनल गैप है कि भाई वो आप जो है सुबह 7 बजे अगर उठ के एक जूम कॉल भी ले रही हैं तो आप 9 बजे खड़े होके इडली सांभर थोड़ी बना रही होंगी। बट अगेन इट्स अ जनरेशनल गैप। तो यू नीड टू टॉक टू योर बॉयफ्रेंड कि आगे जाके लिविंग सिचुएशन क्या होगी। ऑफ कोर्स जो बेटे होते हैं, इनको इनके बारे में माय वाइफ नॉर्मली सेज कि इनकी अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं कटी। इनविजिबल अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो माँ के साथ जुड़ी होती है और माँ के साथ जुड़ी। मैं ही नहीं कह रहा कि माँ को बंदा दुत्कार दे, कुछ अल्लाह ना करे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मगर जब आपने एक अपनी फैमिली रेस करनी है तो अब आपने बैलेंस करना सीखना है। जुड़े नहीं रहना कि हर सही गलत है, जो माँ ने कह दिया तो बस खत्म। माएँ भी गलत हो सकती हैं, बाप भी गलत हो सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बेवकूफ़ लोग भी बूढ़े होते हैं, तो वो भी गलती कर सकते हैं। तो आपने जो है बैलेंस का रिश्ता, क्योंकि ये आप जब किसी को अपने घर लेकर आते हैं, ब्याह के कर लेकर आते हैं, तो ये आपका खाली एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं होता कि जी हमारी लीगल बाइंडिंग है और ये है वो है, दहेज का या जो भी एलिमोनी वगैरह वगैरह जो आगे के चीज़ें होती हैं। मगर ये कि आपने एक ये प्रॉमिस भी किया होता है कि आपने को खुश रखना है, बैलेंस रखना है चीज़ों को। बिकॉज मेन आर टू स्पॉइल्ड अनफॉर्चुनेटली इन आर रीजन। तो वो इस चीज़ को गिव अप करना आसान नहीं है। और फिर माँ तो माँ होती है। अपने बच्चे की माँ, जैसे जावेद अख्तर साहब कहते हैं ना कि अपने बच्चे की माँ के साथ जुल्म करते हैं, उसकी माँ को नहीं खातिर में लाते, लेकिन अपनी माँ नहीं, माँ सम्मान और माँ महान और सब कुछ बैलेंस करना नहीं आता। इट ऑल कम्स डाउन टू दैट। अब जैसा कि आपने राइटफुली यू पॉइंटेड आउट कि ज़ाहिर है शादी के बाद शी विल बी लिविंग इन, बिकॉज ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाउएवर वंस यू नो व्हाट योर पेरेंट्स कैन बी लाइक अराउंड योर पार्टनर, तो फिर अब आपने फिर सही से फैसला करना है और इंसाफ के साथ कि व्हाट्स गुड फॉर यू। अगर तो आपने ठीक है माँ के साथ रहना है तो ठीक है, फिर आप शादी ना करें। अगर आपको ये लगता है कि यार जी मेरी माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती और माँ मेरी महान और सब कुछ, तो ठीक है, यू स्पेंड योर लाइफ विद योर मदर एंड आगे जाके देख लेना। बट ये नहीं हो सकता कि यू ब्रिंग समबडी टू योर होम और फिर आप उसको एक पोजीशन दो एंड देन फिर आप उसको एक नौकरानी की तरह रखो बिकॉज माँ ने कहा है, देन यू डोंट डू इट। तो फिर इसको अगर आप बैलेंस करना जानते हैं तभी कोई नया बंदा फैमिली में लेकर आए, नहीं तो माँ के साथ खुश रहें। और एक चीज़ मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि द बेस्ट टूल women कैन हैव इन दिस डे एंड एज इज़ देयर ओन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो ये तो कभी भी नहीं आपने करना कि आप अपना काम वाम छोड़ के जो है आप इस तरह कर लें, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट डिफाइंस यू, दैट इज़ समथिंग दैट मोटिवेट्स यू एंड इट्स गुड दैट यू हैव अ साउंड करियर। बाकी ये कि यू नीड टू टॉक टू योर मदर इज़ वेल, and she sounds like an educated woman. She can perhaps give you a good advice on this कि how to maneuver this situation, because I'm sure वो भी कभी बहू रही होंगी और उन्होंने भी इस तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो फिर उनसे भी पूछे कि हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। बट इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू नीड टू टॉक टू योर बॉयफ्रेंड कि आगे का फ्यूचर क्या है। और हाँ, आखिर में फिर मैं यही बोलूँगा कि ये जो मामा जी ट्रैवलिंग थी ना, दैट वाज सो वियर्ड। अगेन इट्स नॉट लाइक ट्रेन के गलत स्टेशन पे उतर जाएंगे और फिर वो ट्रेन लापता लेडीज़ वाला सीन तो है नहीं भाई। आप जहाज़ में बिठाओ, वो आज से आपको कलेक्ट कर लेंगे, ख़त्म बात, खल्ली वल्ली, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर तो वो पहली बार जहाज़ में बैठ रही थी तो फिर तो आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिग चैलेंज कि आप पूरा कॉन्टिनेंट, और तो इंडिया से तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी जाती हैं, अज्यूमिंग इफ़ दे ट्रैवल फ्रॉम इंडिया। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान के जी आप यहाँ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट इंग्लैंड जाती नहीं है तो भी पहले दुबई उतरना है। एंड ऑफ कोर्स मम्मी जीज जो है वो फिर कंफ्यूज हो जाती है कि अच्छा कनेक्शन कहाँ से लेना है। ज़ाहिर है इट्स नॉट इजी टू मनूवर अराउंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट सच एज दुबई हो गया, हीथ्रो हो गया, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं। कन्फ्यूजन के चांसेस होते हैं, अगर 1.5 घंटे का ही ले ओवर है तो कहाँ भागना है, सामान कहाँ है। उनको ये भी टेंशन होती है ना कि मेरा सूट के सोच जहाज़ में आप कह रहे हो यहाँ बैठ जाओ, अरे मम्मी जी ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में तो समझ आता है मामा जी साथ आए। मगर अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो बनता नहीं था उनका, फिर वो यही था कि चलो मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग भी चलो, बिस्टर विलेज भी हो आएंगे, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भी देख लेंगे, हैरिड्स भी घूम लेंगे, थोड़े मज़े वजे भी कर लेंगे। और नौकरानी तो हमने वहाँ रखी हुई है, सॉरी टू से। तो वो, और हाँ इसमें एक और चीज़ होती है
मम्मीज को उनको शो लगाने में भी मजा आता है बिकॉज दे वर टू स्पेक्टेटर्स ना। तो वो कि देखो अभी मैं कैसे काम कराती हूँ, ये चल पानी लेकर आ, ये होता है। आई नो दिस क्योंकि मैं ये चीज़ देखते देखते बड़ा हुआ हूँ, अपने आसपास में शौक होता है पावर प्ले का, और सबको होता है। बड़े हमेशा छोटों को दबाते हैं, तो बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हाउ शी बिहेव व्हेन मामा एंड मामी जी आर नॉट अराउंड, तब शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट देन खैर अब कितने ही बंदे एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन ये कि शी वॉज पुटिंग अप अ शो फॉर देम कि देखो पहले दिन से ही मैं दबा के रखूंगी और ये है और वो है वगैरह वगैरह वगैरह। खैर आई होप यू मेक अ साउंड डिसीजन, स्पीक टू योर बॉयफ्रेंड, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि भाई इफ़ ही इज़ लाइक कि उनको कोई बॉदर नहीं करता, दैट्स बिकॉज वो उस एनवायरनमेंट में सारी ज़िंदगी पैदा हुए। आप किसी मछली को ये नहीं बता सकते कि तुम पानी के अंदर हो, क्योंकि मछली को थोड़ी पता वो पानी के अंदर है, ये तो हमें पता है बिकॉज वी आर आउटसाइड। ओके, सिमिलरली आपके जो बॉयफ्रेंड हैं उनको ये सही गलत नज़र ही नहीं आ रहा होगा बिकॉज उनकी सारी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है कि मम्मी जी टांगे दबा रही हैं और ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। इट्स एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर हिम। तो बट ये कि उनको थोड़ा सा एलेगोरी ऑफ द केव की तरह आपको लाने की ज़रूरत है कि भाई रियलिटी थोड़ी सी ऐसी भी होती है। अगर वो उस पर आ जाएं, मान जाएं तो सही बात है। अगर लगता है कि वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है और तो फिर यू नीड टू टेक अ डिसीजन, बट स्पीक टू हिम एंड स्पेशली स्पीक टू योर मदर एज वेल। ठीक है, आई विश यू लक, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।